Hello students, welcome to Career Defense School. Today we will discuss about the Sainik School 2022 exam for class 9th and we will discuss the mathematics session today. So first question which we got in the exam was two right circular cones of equal curved surface areas have their slant heights in the ratio 3:5 and we have to calculate or find the ratio of their respective radii. So we can say that there are two cones and the curved surface areas are equal. Then first cone radius R1 and L1 and the second cone has radius R2 and slant height as L2. And we know that when curved surface areas are equal and the ratios of radii of both is inverse the ratio of the slant heights. Okay, so the ratio of L1 is to L2 is 3:5, so radius ratio will be 5:3. Option A will be the answer. Next question is, how many coins 1.4 centimeter in diameter and 0.4 centimeter thick are melted to form a right circular cylinder of height 16 centimeter and diameter 3.5 centimeter? So in the conversion questions, we know we have to equate the volumes. We have done many questions on this type also. So when diameter is 1.4 centimeter, the radius will be 0.7 centimeter and the thickness is the height and it is the H2 second height of the cylinder and diameter 3.5 centimeter. We can roughly write it as 35 by 20 centimeter as R2. Let this as R1. So volumes and let n be the number of coins. Okay, so n into volume of coin, that is pi R1 square H1 is equal to pi R2 square H2. So n into pi will cancel down and R1 is 7 by 10 into 7 by 10, H1 is 4 by 10 and R2 is 35 by 20 into 35 by 20 into H2 is 16. So on solving this, we get the value of n as 250. So option 3 will be the answer. 250 coins will be required and melted to form the right circular cylinder. The next question is, in the given figure, ABCD is a square. A line segment DX cuts the side BC at X and the diagonal AC at O. So this is a ABCD is a square and AC is the diagonal, DX is the line segment which is cutting AC at O and side BC at X. And angle COD is given as 115 degree and angle OXC is given as N. So in the square, हमें पता है कि दोनों सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ABC ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी and angles opposite to equal sides are also equal. So this will, let us take this as Y angle, both will be equal and हर एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में. So according to the triangle angle sum property of triangle, 2y will also be equal to 90 degree and from here we get the value of y as 45 degree. Okay, and we know that 115 COD angle is the exterior angle of triangle OXC. So x plus y will be equal to exterior angle 115 degree. So from here x will be equal to 115 degree minus 45 degree, which comes out as 70 degree. So value of x is 70 degree. Option 2 is the answer. Next, one of the factors of x square plus 1 by x square plus 2 minus 2x minus 2 by x is. So from the first three terms of this, we know that it is the square 1 plus 1 by x whole square, and from the last two terms, taking minus 2 as common, we will get it as x plus 1 by x, and from these two terms we can take x plus 1 by x as common, and the second factor will become
1 plus 1 by x minus 2. So from the given options, our option 3 is the correct, that x plus 1 by x is the one of the factors of this. Next question is, the following bar graph shows the number of students studying various subjects in a college. Study the bar graph carefully and answer the following questions. So in this bar graph, the subjects are given along with the number of students on the other side, and we have to calculate the ratio of number of students studying history to that of studying architecture. History they are studying is 200, architecture are 500. So ratio of these two is 2:5. Option 4 is the answer. Next question is, a well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Earth taken out of it is spread all around it to make an embankment of height 42 by 3 meters. The width of the embankment is. So इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बोला क्या गया है, एक वेल है और उस वेल को जब आपने खोदा है, जो उसमें से मिट्टी निकली है, वो हमने क्या किया है, उसी वेल के आसपास ऐसे एक एम्बैंकमेंट बना दिया है, उसके चारों तरफ ही उसका ढेर लगा दिया और उसकी कुछ हाइट है, उसकी हाइट क्या है 42 by 3 मीटर्स, दैट इज 14 by 3 मीटर्स. ओके, सो जो हमारा पहले वेल था उसकी हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल H, दिस इज कैपिटल H 14 मीटर्स, और जो स्मॉल हमारी एम्बैंकमेंट है उसकी हम हाइट ले लेते हैं स्मॉल h विच इज इक्वल टू 14 by 3 मीटर्स, और रेडियस जो हमारा वेल है उसका हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और एम्बैंकमेंट का रेडियस जो है वो हम कैपिटल आर ले लेते हैं. सो विड्थ कितनी होगी एम्बैंकमेंट की, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी. विड्थ विल बी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है जब भी मिट्टी निकाल के हम दूसरी जगह डाल रहे हैं या कन्वर्जन होती है, व्हाट वी डू, हम वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में भी हम वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे दोनों सिलेंडर्स की. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. सो पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एंड रेडियस डायमीटर अगर 10 मीटर्स था तो रेडियस 5 होगी, तो 5 into 5, हाइट उसकी डेप्थ 14 थी, एंड आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, एंड स्मॉल आर की वैल्यू इज 5, तो ये आर स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू हाइट इज 14 by 3. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस 25 की वैल्यू इज 25 into 3, दैट इज 75, एंड आर स्क्वायर वैल्यू you will get as 100. From here you get the value of r as 10 meters. अगर कैपिटल R 10 meters है, width of embankment रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट आपकी 10 meters है, रेडियस ऑफ वेल आपकी 5 meters है, तो width कितनी हो जाएगी, width will be कैपिटल R minus small r which is equal to 10 minus 5 which is 5 meters. तो width of the embankment is 5 meters. Option A is your answer, option 1. Next question is, which of the following rational numbers is greater than p if p is equal to 5 by 7? बहुत ही बेसिक वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके साथ के. p की वैल्यू 5 by 7 जब आप सभी ऑप्शंस में पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज माइनस 7 by 2, 1 plus p by p, this value as 12 by 5, and p by p minus 1, this value as minus 5 by 2, and fourth value as 1 by 6. So as negative number cannot be greater than a positive number, so option 3 and 1 are invalid. So out of the options second and fourth, हमें पता है 5 by 7 is less than 1 and 12 by 5 is greater than 1. So p की वैल्यू से बड़ी हमें वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, क्योंकि 12 by 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो 5 by 7 से बड़ी है. ओके, नेक्स्ट इज, which of the following can be another name of a cylinder? एक सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर प्रिज्म बोलते हैं. दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. नेक्स्ट, 2 raised to power x, 3 raised to power y and 6 raised to power z are all equal. Then value of z is.
तो ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी हमने किया है क्लास में, इसको क्या करना, इक्वल टू के आपको लेना था. एंड सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स रूल, इफ 2 raised to power x is equal to k, then k2 will be equal to k raised to power 1 by x. हम उतना रूट ले लेते हैं. सो फ्रॉम दिस 2 will be equal to k raised to power 1 by x, 3 will be equal to k raised to power 1 by y, and 6 will be equal to k raised to power 1 by z. सो हमें पता है 2 into 3 6 होता है. तो 2 into 3 is equal to 6. तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें. k raised to power 1 by x into k raised to power 1 by y is equal to k raised to power 1 by z. जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती है. सो k raised to power 1 by x plus 1 by y is equal to k raised to power 1 by z. Bases are same, powers will be equal. So 1 by z will be equal to 1 by x plus 1 by y, and from here we get the value of z as xy by x plus y. So option 2 आपका इसमें आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन चारों ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करने की स्टेटमेंट गलत कौन सी है. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है. हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है. A quadrilateral can be drawn if all the 4 sides and 1 angle is known. अगर आपको एक एंगल पता है तो आप बाकी के एंगल्स प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट करके, और चारों साइड्स आपको पता है तो आप क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हो. तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है. ट्राइंगल इज अ पॉलीगन whose sum of exterior angles is double the sum of interior angles. ये भी आपका बिल्कुल सही है. लास्ट ऑप्शन इज इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट मस्ट बी अ स्क्वायर. देखिए जो वर्ड मस्ट है यहाँ पे, इसने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया है. क्यों? बिकॉज मस्ट भी नहीं होगा. वो आपके डायगोनल्स तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं. सो ऑप्शन 4 इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन 4 था. नेक्स्ट इज इफ HCF एंड LCM ऑफ टू टर्म्स A and B आर x and y respectively and A plus B equal to x plus y, then x square plus y square की वैल्यू आपको बतानी है. तो बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर अगेन क्वेश्चन है, हमने क्लास में क्वेश्चन किए हैं. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. सो HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. सो फ्रॉम हेयर AB इज इक्वल टू XY. और ये जो आपको फाइंड आउट करने के लिए इक्वल स्टेटमेंट दी गई है, A प्लस B इज इक्वल टू x प्लस वाई. क्या करेंगे, दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर करते हैं, बिकॉज हमें स्क्वायरिंग के नंबर्स चाहिए, तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy. और xy और ab इक्वल है तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो आपका ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज two complementary angles are in the ratio 13:5, then the angles respectively are. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. तो अगर रेशियो आपको एंगल्स का दिया गया तो एंगल्स विल बी 13x एंड 5x, और उन दोनों का सम कितना होगा 18x विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो x जो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू आपको 5 डिग्री मिल जाएगी. तो एंगल्स क्या होंगे 65 डिग्री एंड 25 डिग्री. तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357. द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया है. तो हम क्या लेंगे 7x, 7 टाइम्स x प्लस 1 एंड 7 टाइम्स x प्लस 2. तीनों कंसेक्टिव मल्टीपल्स होंगे और इनका हमें सम करना है. तो सम इज इक्वल टू 357. 7x प्लस 7x प्लस 7x 21x plus 7 plus 14 it is 21 again. तो it will be equal to 357. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21x will be equal to 336 और x की वैल्यू जो आएगी that will be 16. तो अगर x की वैल्यू 16 है तो आपका स्मॉलेस्ट सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 7x है. तो 7x की वैल्यू will be 7 into 16 which is equal to 112. तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट था. Next, out of the given numbers, which one is known as Hardy-Ramanujan number? डायरेक्टली क्वेश्चन था ये.
और हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं हम 1729 को। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट था। नेक्स्ट, there are 42 students in a class. Out of these, 3/4 of the boys and 2/3 of the girls come to school by bus. Total number of boys and girls of the same class who come to school by bus is 30. How many boys are there in the class? देखिए, अगर टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हम ले लेते हैं x है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 42 माइनस x होंगी गर्ल्स। और आपको बोला गया 3/4 ऑफ द बॉयज, सो 3/4 ऑफ द बॉयज एंड 2/3 ऑफ द गर्ल्स आपकी बस से आती है। और टोटल बच्चे कितने आते हैं बस से? 30 आते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो 3/4x प्लस 314, 2 इंटू 42/3, इट विल बी 28 माइनस 2/3x विल बी इक्वल टू 30। तो x वाली टर्म्स को जब आप कंबाइन करके एलसीएम लोगे, एलसीएम विल बी 12, 3 3 9x and 4 2 8x. It will be equal to 30 minus 28 which is equal to 2. So x by 12 की वैल्यू is 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 24 मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अगर x की वैल्यू 24 है, हमने बॉयज को ये x लिया था और हमें वही कैलकुलेट करना है, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज number of cuboids with dimensions 8 cm, 15 cm and 20 cm stacked together to form a cube. देखिए, क्यूब कब बनता है? जब आपको परफेक्ट क्यूब मिलता है उसकी वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हम n ले लेते हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कितना हो जाएगा? 8 इंटू 15 इंटू 20। तो जब आप इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, इसको एक क्यूब की वॉल्यूम बनाने के लिए हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this is a perfect cube. It is 5 into 3 and it is 5 into 2 into 2 into 8. तो आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा so that it becomes the volume of cube. This is a cube. आप इसको एक्स्ट्रा 2 से करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 5 से करना पड़ेगा और 3 की पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें इसको 9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 5 into 9 into 2 दैट इज 90। तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें? 90 होगी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल 162 डिग्री विल बी। देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सब मैंने आपको बताया है क्लास में कि 180 डिग्री होता है। तो अगर 162 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 18 डिग्रीज। और हमें पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड of the polygon. So number of sides कितनी आ जाएंगी? 20 आ जाएंगी। Option 2 is the answer. Divya purchased 11 books for ₹10 and sold all books at 10 for ₹11. Her profit or loss percent is. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया है। 11 बुक्स आपने खरीदी है तो आपको 11 सेल करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ बुक्स को सेम कर लेंगे जब हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस में क्या है? 11 बुक्स आपने खरीदी है फॉर ₹10 एंड सेलिंग प्राइस में आपने 10 बुक्स सेल की है फॉर ₹11। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसको नंबर ऑफ बुक्स को सेम बना लेते हैं 110। अगर 110 बुक्स हैं तो आपने कितने में वो खरीदी है? 100 रुपीज में। और 110 बुक्स आपने सेल कितने में की है? 121 रुपीज में। ओके, तो 100 और 21 में कितना डिफरेंस, कितना प्रॉफिट हुआ? 21 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज पे, तो कितना परसेंट हुआ? दैट विल बी 21% डायरेक्टली। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रन। देखिए, पॉलीहेड्रन के केस में यूलर्स फॉर्मूला के बेस डायरेक्टली क्वेश्चन आया। अगेन हमने किया है क्लास में क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है? f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 होता है। सो लेट अस टेक 4 प्लस 4 8 माइनस 6 इट इज 2। तो ये तो सही है, ये ट्रू है। 8 प्लस 6 14 माइनस 12 2, ये भी सही है। 20 प्लस 12 32 माइनस 30, ये भी सही है। 2 4 प्लस 6 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन 4 सही था इसमें। नेक्स्ट, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that it is neither a heart nor a
रेड किंग। सो हमें पता है टोटल जो हार्ट के कार्ड्स होते हैं वो टोटल 13 रेड होते हैं, और रेड हमारे डायमंड के कार्ड्स भी होते हैं, तो एक हार्ट का किंग तो इसमें हो जाएगा, और रेड किंग दूसरा किसका होता है, डायमंड का, तो वो भी हमें नहीं लेना। तो हमें इन टोटल 14 कार्ड्स को नहीं लेना है। इट इज नीदर, नीदर की वजह से हमें इनको नहीं लेना, तो 1452 में से 14 नहीं लेना है। तो पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल आर 38। so probability will be equal to possible, total are 52, so it will be 19/26. Option 2 is your answer. Next, three sides of a triangular field are of lengths 15 meter, 20 meter and 25 meter. Find the cost of sowing seeds in the field at the rate of ₹5 per meter square. देखिए जो तीनों साइड्स आपको दी गई है, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, बिकॉज 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर 625। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता लगा कि तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 15 इंटू 20, सो इट इज 150 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 150 दैट इज 750 रुपीज आपकी कॉस्ट है। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। If 3a plus 4b equal to 16 and ab equal to 4, then find the value of 9a square plus 16b square. Again we have done many questions of this type. तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। इस इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज 16b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b इज इक्वल टू 16 स्क्वायर दैट इज 256। और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर 2 3 6 प्लस 6 इंटू 4 इज 24ab। सो यू विल गेट दिस एज 256 minus 24 into 4 that is 96। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get the value as 160 here and 9a square plus 16b square. So option A आपका इसमें करेक्ट है। Next, x is a 2-digit number, y is the number obtained on reversing the digits of x. तो हम ले लेते हैं अगर x इक्वल टू ए बी है तो y क्या होगा, बी ए होगा। और ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, 10a प्लस बी दिस इज इक्वल टू x, एंड y को क्या लिख सकते हैं हम, 10b प्लस a। ये भी क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में नंबर सिस्टम में। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, सम क्या होगा x प्लस वाई, इट इज इक्वल टू 11a प्लस 11b। तो क्या हमारा कोई ऑप्शन x प्लस वाई से मैच करता है, नहीं। x माइनस वाई डिफरेंस कितना होगा, 9a माइनस 9b। तो ये आपका जो है 9 टाइम्स a माइनस b आ रहा है, तो दैट मीन्स ये नंबर आपका x माइनस वाई 9 से डिविजिबल होगा हमेशा। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द नंबर A4b, A is the smallest 2-digit perfect cube and A's unit place exceeds B by 3। तो देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2-digit का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो सबसे छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो 27 होता है। तो दैट मीन्स A की वैल्यू है 27। तो 2 7 4 एंड B का आपको बोला कि जो A का यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है 7, वो B से 3 ज्यादा है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 3 दैट इज 4 अगेन। तो आपका नंबर क्या हो गया, 2744। तो हमें निकालना है द नंबर, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट होता है, 2744 का क्यूब रूट होता है 14। तो आप इन दोनों का सम करोगे यू विल गेट इट एज 2758। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 698 स्क्वायर एंड 699 स्क्वायर इज। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया है, एंड हमें पता है कि n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में हमेशा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। सो 2 इंटू 698
इट इज इक्वल टू 1396. ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n. ये भी हमने क्लास में किया है. n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स के इक्वल होता है. तो ऑप्शन डी और ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है इसमें. A person standing on the railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely cross a platform which is 84 meter long and it took 9 seconds in crossing him. The speed of the train is. सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है अगेन. तो हमें पता है अगर ट्रेन की लेंथ L है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L प्लस 84 एंड इट इज क्रॉसिंग इन 21 सेकेंड्स. डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई ट्रेन की और लेंथ L जो है वो 9 सेकेंड्स में मैन को क्रॉस कर रही है, पर्सन को. सो L बाई 9. जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L एज 63 मीटर्स. अगर L 63 मीटर्स है तो स्पीड कितनी होगी 63 बाई 9. दिस इज द स्पीड बट इट इज इन मीटर पर सेकेंड. तो हमें स्पीड किस में चाहिए किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर नाउ. तो क्या होगा, आंसर विल बी 25.2 किलोमीटर पर आवर. तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 is, if a square with each side A is joined from opposite sides to form a cylinder. देखिए जो आपका स्क्वायर होगा इट विल बी लाइक दिस. तो जब आप इसकी ऑपोजिट साइड को मिला के, इन दोनों साइड्स को अगर आप मिलाओगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा. तो दैट मीन्स जो ये आपकी साइड है A, दिस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर. ऐसे बनेगा आपका, राइट. तो उसकी हाइट भी A होगी और ये जो सर्कमफ्रेंस है वो भी A के इक्वल होगा. सो A विल बी इक्वल टू, अगर इसकी रेडियस हम R लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2πr. सो R की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी A/2π आ जाएगी. और आपको बोला है कि सर्कुलर एंड का एरिया आपको कैलकुलेट करना है. हमें पता है सर्कल का एरिया के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. सर्कल का एरिया कितना होता है πr². सो पाई इंटू A² बाय 4π². एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है दैट विल बी A² बाय 4π. ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ. सो 29th क्वेश्चन में बच्चे देखिए इसमें क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टाइम इंक्रीजिंग, टेम्परेचर रिमेन सेम. टाइम इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीजिंग. लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल कि टाइम आपका सेम रहे और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए. तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट होगा. इट कैन नॉट बी अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, द मीन ऑफ दीज 6 नंबर्स इज m. तो m की वैल्यू क्या होगी, इन सब का एवरेज, और 1 3 4 5 7 एंड 10 इन सब का सम कितना है आपका, इट विल बी 30. ओके, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m विल बी 30/6 विच इज इक्वल टू 5. और आपको बोला गया है कि जी नंबर्स हैं, इन ऑब्जर्वेशंस का है मीन जो है वो m-2 है. दैट मीन्स 3 है. 5 - 3 इज 2. सो इन सब का सम है 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 + 3 14 + 3 17 + p. सो 17 + p by 1 2 3 4 5 6 and 7 इट इज इक्वल टू 3 m-2. तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4. एंड आफ्टर दिस, और आपको बोला गया कि इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन है दैट इज q. फॉर फाइंडिंग द मीडियन हम क्या करते हैं, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो इट विल बी 2 2 3 3 3 4 एंड 4. दीज आर द 7 नंबर्स एंड द मिडल टर्म आपकी जो होती है वो मीडियन होती है. सो मिडल टर्म इज 3. तो q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 होगी. ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा इसमें. सो नेक्स्ट 31st क्वेश्चन इज, the sum of additive inverse and multiplicative inverse of 2/9. additive inverse क्या होगा 2/9 का, it is -2/9 और सम करना है आपको
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 9/2. आप इन दोनों का सम निकालोगे तो LCM विल बी 18. इट विल बी -4 प्लस 81. तो आंसर विल बी 77/18. ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट 32 क्वेश्चन इज द पाई चार्ट बिलो शोज परसेंटेजेस ऑफ ब्लड टाइप्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. टाइप A, टाइप B, टाइप O and type AB. If the total number of people with blood types A और B, तो that means A और B दोनों को मिला के 82 आपको टोटल पीपल दिए गए. That means 16% plus 25% की वैल्यू आपको दी गई है 82. This is 41% की वैल्यू is 82, तो 1% की वैल्यू is 2. Find the number of people with blood group types A, B and O. 41% की आपको वैल्यू दी गई थी AB और O. Rest they are making 59%. So 59% will be 2 into 59 which is equal to 118. तो ऑप्शन 4 आपका इसमें आंसर होगा. Next, if the side of a chessboard is smaller than its perimeter by 42 centimeter, find the area of the chessboard. ये क्वेश्चन भी हमने चेसबोर्ड के क्वेश्चंस भी किए हैं क्लास में. चेसबोर्ड क्या होता है? आपका एक स्क्वायर होता है, राइट? इट इज अ स्क्वायर. हम इसकी साइड अगर ले लेते हैं A, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 4A होगा पेरीमीटर. और आपको बोला गया जो साइड है वो पेरीमीटर से 42 कम है, तो साइड पेरीमीटर माइनस साइड इट इज इक्वल टू 42. तो A की वैल्यू आपकी यहाँ से 14 आ जाएगी. अगर साइड उसकी 14 है चेसबोर्ड की, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर. तो एरिया विल बी 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, when two unbiased dice are rolled together the probability of getting both same outcomes is. देखिए जब आप दो डाइस को रोल डाउन करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने किया क्लास में, तो सेम आउटकम आने के पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 and 6 6. Only these 6 are possible and total outcomes कितने होते हैं? 36 होते हैं when two dice are rolled together. Total outcomes are 36. तो probability क्या हो जाएगी आपकी? 6/36. तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट, the coordinates of a point on a y-axis which is at a perpendicular distance of 4 units in the positive direction from origin are. देखिए कोई भी पॉइंट अगर y-axis पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. ओके, तो एंड आपको बोला गया कि 4 यूनिट्स पे है एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जो y की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, 0 नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PQ is parallel to RS. This line PQ is parallel to RS. Angle PXM, this angle is given as 50 degree. MYS is 120 degree. This is angle MYS which is 120 degree. Find the value of X if reflects XMY. ये रिफ्लेक्स एंगल आपको X - 20 दिया गया और आपको X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो हमें जो ये XM ये वाला एंगल होगा दिस विल बी 50 एंड जो ये वाला एंगल होगा दिस विल बी 60 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो टोटल 360 डिग्री होना था एंड दिस इज 50 प्लस 60 प्लस x माइनस 20 इज 360. तो 360 माइनस 110 प्लस 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से 270 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी. ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा इसमें. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, 2 raised to power x plus 2 raised to power x plus 2 raised to power x. आपके नंबर्स को अगर सेम नंबर को बार बार ऐड करते हो तो आप उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो 3 into 2 raised to power x is equal to 192 आपको गिवन है और आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो 2 raised to power x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 192/3 विच इज इक्वल टू 64. और बेस एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज हमने किए हैं. सो 2 raised to power x इज इक्वल टू 64 को आप क्या लिख सकते हो? 2 raised to power 5 लिख सकते हो. तो बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स विल ऑल्सो बी सेम, तो x की वैल्यू विल बी 5. ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा इसमें.
नेक्स्ट 38th question. Radha invested 1600 on compound interest for 2 years. She received 1764 rupees after the specified period. That means after 2 years she received the amount as 1764 rupees. Find the rate of interest per annum. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए हैं. फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर n, where n is the number of time period, P is the principal, A is the amount and R is the rate of interest. So amount is given as 1764, principal is 1600, 1 plus R by 100, R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, N is given as 2 years. तो यहाँ से जब आप इसका रेशियो कैलकुलेट करें 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी 441. तो रेशियो विल बी 441 by 400 इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 रेज टू पावर 2. हमें पता है किसका स्क्वायर होता है? 21 by 20 का स्क्वायर होता है, और जब दोनों तरफ स्क्वायर्स हैं तो हम इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमें क्या 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 21 by 20. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर बाई 100 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 by 20 एंड आर विल बी इक्वल टू 5%. तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा इसमें. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ था. 39th क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब आपके पास काफी सारे उसमें पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कुछ भी पॉसिबल है, रैंडम होता है. टॉसिंग ऑफ कॉइन्स आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स है. रोलिंग अ डाइस में भी आपके पास ज्यादा आउटकम पॉसिबल है. 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज करना, दैट इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. जब भी आप स्टोन को गिराएंगे तो वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स ही जाएगा, तो उसमें कोई भी और पॉसिबल आउटकम नहीं है, तो दैट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. इफ x, y and z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a, b, c आर रैशनल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस. देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है अगर x रेज टू पावर m माइनस n होता है तो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से उसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू पावर m बाय x रेज टू पावर n लिख सकते हो. सो जब आप इनको भी ऐसे ही लिखोगे इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को, फिर आप लिख सकते हो 1 बाय 1 प्लस x रेज टू पावर b बाय x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर c बाय x रेज टू पावर a प्लस 1 बाय 1 प्लस x रेज टू पावर a बाय x रेज टू पावर b प्लस x raised to power c by x raised to power b plus 1 by x1 plus x raised to power a by x raised to power c plus x raised to power b by x raised to power c. और जब डिनोमिनेटर टर्म्स का आप LCM लोगे सो इट विल बिकम 1 by x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c divided by x raised to power a plus 1 by x raised to power b plus x raised to power a plus x raised to power c by x raised to power b plus 1 by x raised to power c plus x raised to power a plus x raised to power b divided by x raised to power c. और फ्रैक्शंस को इन्वर्स करोगे you will get x raised to power a by x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c plus x raised to power b by x raised to power b plus x raised to power a plus x raised to power c plus x raised to power c divided by x to power c plus x raised to power a plus x raised to power b. On seeing these हमें पता है कि तीनों का बेस सेम है, तो न्यूमरेटर्स भी ऐड हो जाएंगे, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो इसको आपको सॉल्व करके मिलेगा x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c divided by x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c. और बोथ आर सेम तो कैंसल डाउन और आंसर आपका 1 आ जाएगा. ओके, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064 इज. देखिए आप इसमें डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट करना होता है हमें 1 डेसिमल के लिए, तो 1 2 3 4 एंड 5. तो आप इसको क्या लिखोगे? 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵. ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट
42 question. A wrist watch with MRP 5,000 available in 2 showrooms at different offers. First one is offering additional 40% after a discount of 50% on the MRP. So that means 50% plus 40%, दो डिस्काउंट्स मिल रहा. Second is offering 80% discount on the MRP. MRP is 5,000. तो डायरेक्टली वो 80% देगा. अगर 80% का 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो 2500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा 50% एंड 2500 पे फिर से 40% डिस्काउंट मिलेगा. तो दैट मीन्स कितनी वैल्यू बच जाएगी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इस केस में, इट विल बी 2500 का 60%, सो इट विल बी 1500 इन दिस केस सेलिंग प्राइस. और अगर 80% का डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस विल बी 20% ऑफ 5000, सो इट इज 1000 इन सेकेंड केस. तो आपको बताना है दोनों सेलिंग प्राइसेस में डिफरेंस कितना है. 1500 और 1000 में 500 का डिफरेंस है. तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइसेस इज 500 रुपीज. ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, अ सिस्टम हैज 2 इनलेट्स A and B which can fill it in 12 and 15 minutes respectively. An outlet C can empty the full cistern in 10 minutes. So that means we can take this as plus 12 plus 15 and this is minus 10 minutes. If all 3 pipes are open together in an empty cistern, then the time taken to fill the cistern is. इसके साथ के क्वेश्चन भी हमने टाइम एंड वर्क में किए हैं. So if it is plus 12 plus 15 and minus 10, so total work हमें कितना करना होगा, LCM तीनों का that is 60. तो जो फर्स्ट पाइप है A, this is B and this is C. तो A कितना काम करेगा, it will be 5 plus 5. B कितना करेगा, it will be plus 4 and C minus 6 करेगा. तो टोटल 1 मिनट में कितना सिस्टम फिल होगा, 5 plus 4 9 minus 6 that is 3 फिल होगा. आउट ऑफ 60 पार्ट्स 3 पार्ट्स 1 मिनट में फिल होंगे. तो हमें 60 को फिल करना है तो टोटल डिवाइडेड बाय 1 मिनट वर्क इक्वल बी टाइम, तो इट विल बी 20 मिनट्स हमें लगेंगे. तो ऑप्शन ए आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा. नेक्स्ट 44 क्वेश्चन. अ कॉन्ट्रैक्टर कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क विद सर्टेन नंबर ऑफ मेन. तो हम नंबर ऑफ मेन को एक्स ले लेते हैं. इन 9 days. तो एक्स मेन जो है वो 9 days में काम करते हैं. 6 of them remained absent from the very first day. तो 6 लोग तो काम पे आए ही नहीं है. सो रेस्ट कुड फिनिश द वर्क इन 15 days. तो दैट मीन्स अगर 6 लोग कम काम कर रहे हैं तो 15 days में काम कंप्लीट हो रहा है. M1 D1 इक्वल टू M2 D2. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए हैं. सो इट विल बी 9x इज इक्वल टू 15x माइनस 90. तो 90 विल बी इक्वल टू 6x. x की वैल्यू आ जाएगी 15. तो ओरिजिनली कितने मैन थे, 15 मैन एम्प्लॉयड थे. ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट 45 क्वेश्चन. स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 27 by 169 इक्वल टू 1 plus x by 13 देन x इज इक्वल टू. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया. आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है और स्क्वायर रूट LCM लेना है. सो LCM लेके 169 plus 27 डिवाइडेड बाय 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 plus x by 13. तो 169 plus 127 होता है 196 by 169 का स्क्वायर रूट आपको लेना. इट इज इक्वल टू 1 plus x by 13. 196 का स्क्वायर रूट होता है 14. 169 का होता है 13 माइनस 1 इज इक्वल टू x by 13. तो 1 by 13 इज इक्वल टू x by 13. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1. तो आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा इसमें. नेक्स्ट 46 क्वेश्चन. द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.2 बार. बार वाले क्वेश्चंस भी हमने क्लास में किए हैं. तो बार के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम 10 की जगह पे 9 लिखते हैं. 3/9 प्लस 2/9. तो आंसर सॉल्व करके डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली आप ऐड कर दोगे 5/9. ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा इसमें. नेक्स्ट 47. इफ 1y प्लस xy सम गिव्स z6. तो ये क्वेश्चंस भी हमने क्लास में किए हैं. तो अगर y प्लस y 6 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 3. और आपको बोला गया कि जो z है वो y प्लस 3 होगा और z माइनस y का जो डिफरेंस है वो 3 है.
सो z विल बी इक्वल टू 3 + 3 दैट इज 6 फ्रॉम हियर, और आपको y और z की वैल्यू बतानी है, y इज 3 एंड z इज 6, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा इसमें। 48th question. Shelly buys some chocolates at the rate of 10 per chocolate. She also buys an equal number of candies at the rate of 5 per candy. तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं चॉकलेट्स खरीदी है उसने और कैंडीज खरीदी है उसने। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, और नंबर हम ले लेते हैं कि उन्होंने एक्स लिया है दोनों का। अगर एक का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज था तो टोटल का कितना हो जाएगा 10x, और 5x कैंडीज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और चॉकलेट्स पे उसको प्रॉफिट हुआ है 20%, सो इट विल बी सेलिंग प्राइस 12x आ जाएगा। 8% प्रॉफिट हुआ है कैंडीज पे, 5x 108%, इट विल बी 5.4x, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15x और टोटल सेलिंग प्राइस है 17.4x, और आपको बोला गया है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 240 रुपीज का, तो दैट मीन्स SP माइनस CP 2.4x की वैल्यू आपको दी गई है 240 रुपीज, तो x की वैल्यू विल बी 100, तो दैट मीन्स उसने चॉकलेट्स भी 100 खरीदी थी और कैंडीज भी 100 खरीदी थी, चॉकलेट्स 100 खरीदी, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन विल बी the angles of a quadrilateral are in the ratio 6:7:8:9 and which of the following can be concluded from this. ओके तो ये क्वेश्चंस भी हमने क्लास में किए हैं रेशियो में एंड क्वाड्रिलेटरल्स में। सो चारों एंगल्स कितने हो जाएंगे, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। सो 6 + 7 13 + 8 21 + 9 30x की वैल्यू आपको 360 डिग्री दी गई है, तो x की वैल्यू विल बी 12, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे 72 डिग्री 84 डिग्री 96 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो देखिए टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, यस टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यस फर्स्ट एंड फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो ये भी सही है ये भी सही है। वन ऑफ दीज एंगल्स है राइट एंगल, नो नो कोई भी राइट एंगल नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन 0.09 इज ग्रेटर देन 7/8, सो 7/8 क्या होता है आपका 0.875 होता है, सो 0.09 इज ग्रेटर देन इट इज नॉट ग्रेटर देन 0.875, सो दिस इज योर रॉन्ग ऑप्शन। 6% इज लेस देन 0.09, 6% को आप लिख सकते हो 0.06 एंड इट इज डेफिनेटली लेस देन 0.09, तो आपका ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन में करेक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स पेपर फॉर क्लास 9th। सो बच्चे एग्जाम बहुत ही इजी था और बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए थे एंड होपफुली आप लोगों ने अपने आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे। सो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था पेपर में जो हम लोगों ने ना किया हो क्लास में। ओके सो अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन मैसेज और कमेंट डाउन and we will solve your query and all the very best for your results. Hopefully आप सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट आए and thank you so much. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।